This unique friendship was forged through centuries of shared history, common faith, mutual sacrifice, and an enduring sense of brotherhood. Long before our two modern states came into being, our peoples stood together in moments that shaped the course of history. پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کی شاندار تاریخ، دونوں نے ہمیشہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب۔ رجب طیب اردوان کی مخلصانہ حمایت سے پاکستان کو ثالثی کا موقع ملا۔ سفارتی مشن آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ آمن کے موقع سے اب بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کا جنگ اور قدرتی آفات کے دوران ترکیہ کے تعاون پر اظہار تشکر۔ قبرص کے معاملے پر ترکیہ کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ Our solidarity with Pakistan continues in every field. We discussed the steps we can take to further enhance our trade and investment relations in a manner befitting the spirit of solidarity. ترکیہ کے صدر کا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم قرار۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ رجب طیب اردوان کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی ترک کمپنیوں کو پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت۔ شہباز شریف کی استنبول میں ترک سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں۔ توانائی، کانکنی، آئی ٹی، انفراسٹرکچر اور نجکاری میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ پاک ترک اقتصادی شراکت داری نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ ترک سرمایہ کاروں کا پاکستان کی معاشی اصلاحات پر اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے موجودہ دور کی سفارتکاری میں معیشت کو انتہائی اہم جز قرار دے دیا۔ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کاروبار دوست ماحول کی فراہمی ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا استنبول میں پاکستان ترکی B2B کانفرنس سے خطاب۔ امریکہ ایران بات چیت کا اگلا راؤنڈ 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کا دعویٰ۔ مذاکرات میں ایران پر پابندیاں، منجمد اثاثے اور جوہری معاملات زیر غور آئیں گے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت، میت آخری دیدار کے لیے تہران کی گرینڈ مسجد میں موجود۔ سوگواران کا سیلاب امڈ آیا، رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ جلوسوں کی شکل میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ سرخ پرچم تھامے شرکا نوحہ خونا۔ قاسم سلیمانی کے پورٹریٹس بھی اپنے ہمراہ لائے۔ کل صبح نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی الوداعی رسومات۔ ایرانی صوبے تہران میں منگل تک تعطیل کا اعلان۔ اس سے قبل حکومت نے صرف منگل کو چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ تہران کی گرینڈ مسجد میں ہزاروں افراد کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے ساتھ وفاداری کا عہد۔ شرکا نے ہاتھ فضا میں بلند کیا اور لبیک سید مجتبی کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ معروف فلسطینی شاعر تمیم البرغوثی کا ایران کے شہید سپریم لیڈر سے محبت کا اظہار۔ سید علی خامنہئی کو نظم لکھ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید خامنہئی کے جنازے کے اجتماع میں سعودی عرب کے اعلیٰ وفد کی شرکت سے مبصرین کو خوشگوار حیرت۔ دنیا بھر سے وفود کی شرکت۔ تاجک صدر امام علی رحمان اور آرمینیم وزیر اعظم کی تہران آمد۔ عمانی وفد نے خصوصی شرکت کی۔ ترکی، روس اور چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کا شہید کو خراج عقیدت۔ مصر، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، شام، جارجیا، جرمنی اور تھائی لینڈ سے وفود بھی تہران پہنچے۔
भारत की इसराइल से दोस्ती और ईरान से दुश्मनी फिर आया हो गई। शहीद आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में दावत के बावजूद मोदी का शिरकत से इनकार। बिहार के गवर्नर की क़यादत में वफ्द भेजकर खानापुरी की कोशिश। दिल्ली सरकार के इक़दाम पर भारत में अंदर से भी आवाजें उठने लगीं। And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. जज्बा रहमदिली के बायस ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग के दौरान ईरान को जबरदस्त नुकसान का दावा। कहा तेहरान वाशिंगटन के साथ तस्वीर के लिए बेताब है। 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, अमरीका हमेशा अमन का ख्वाहां रहा, अमन पसंद है, लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। 8 जंगें रुकवाई लेकिन नोबेल इनाम नहीं मिला। ट्रंप ने कम्युनिज्म को सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। जंग के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अमरीका को तिजारत के मामले में मौजूद हकाइक को तस्लीम करना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की उज़्बेक हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़े किया हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए और जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमरीकियों को मौजूदा हकीकतें कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे माहौल में तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। उम्मीद है पाबंदियाँ उठाने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी। लाहौर में अगवा ज्यादती का निशाना बनने वाली गैर मुल्की खवातीन ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, रज़ा डार से सिंगापुर में मुलाकात हुई, साबिक आला शख्सियत के साथ तस्वीर दिखाई, खुद को वजीर का बेटा कहा। दौरान कैद नामालूम अफराद ने ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। रज़ा डार एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, रास्ते में गाड़ी रोकी तो छलांग लगाकर भाग निकले। ट्रैफिक पुलिस ने मदद का कहा, लेकिन उन्होंने भी रास्ते में गाड़ी रोक दी। दोबारा फरार के बाद अस्ल पुलिस की मदद मिली। खवातीन का इंकशाफ, खवातीन का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार। दोनों मुतासरा खवातीन वतन रवाना हो गईं। हाई कोर्ट जजेस की 1 साल बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जुडिशल कमीशन कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हुआ तो रेफरेंस भिजवाया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब। मुल्क के मफाद में होने वाली तरमीम ज़रूरी करार। वाज़े किया कि 28वीं तरमीम फौरी नहीं, अलबत्ता मशावरत से आएगी। गवर्नरशिप हमें वापस की जाए, इस पर भी आपका कमिटमेंट है। PDM 1 से हमारे साथ कमिटमेंट है, तो ये PDM 2 में आपने पीपल्स पार्टी के साथ अगर दस्तखत कर लिए तो हमें तो एतमाद में नहीं लिया था कि ये गवर्नर आपका होगा और लाजमी होगा, और पीपल्स पार्टी इसके बगैर चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमें ये कम्युनिकेट किया है कि आपके गवर्नर को हटाने में हमारा कोई हाथ नहीं। गवर्नरशिप वापस की जाए, कराची को विफाक के हवाले किया जाए या मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। MQM ने वादे पूरे न होने पर विफाक की हुकूमत छोड़कर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी दे दी। वक्त आ गया है कि अवाम सड़कों पर आएं। विफाक को मुदाखलत करनी है तो अभी कर ले। फारूक सत्तार का MQM को दीवार से लगाने का शिकवा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ से वजाहत का मुतालबा। कोटा सिस्टम और शहरी इलाकाजात में तरक्याती मंसूबों पर सिंध सरकार की कड़ी तनकीद। विफाकी मुदाखलत का मुतालबा सियासी दबाव का हथकंडा और ब्लैक मेलिंग के सिवा कुछ नहीं। MQM इक्तदार की खातिर शॉर्टकट ढूंढने लगी। शर्जील मेमन का MQM पर अवामी मैंडेट खो देने का दावा। सिंध के मामलात विफाक को हवाले करने का मुतालबा। विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश करार। तरक्की और खिदमत का सफर जारी रखने का अज़म। सियासतदानों को खुद मंजिल का इल्म नहीं, वो दूसरों की क्या रहनुमाई करेंगे। कौमी शनाख्त के फरोग के लिए पंजाब से गिलगित बल्तिस्तान तक यकसा निसाब होना चाहिए। सूबों ने यकसा निसाब तालीम की मुखालफत की। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। आईनी तरमीम के मुताबिक पाकिस्तानी शनाख्त अपनाने पर जोर। दावा किया कि गुज़िश्ता 1.5 साल में हासिल की गई कामयाबियों की मिसाल 78 बरस की तारीख में नहीं मिलती। दहशतगर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क अब अमन का सफीर बन चुका है। बड़े
वहाँ पे जो है ना लोग हैं 6-7 फुट उनका कद है। खवाजे की भी जड़ा उन्हें अपनी कस्टडी विच रखे है। उन्होंने भरा जड़ा ना नहीं मुलाकात नहीं करन देन लगे। साड़ी आवाम जड़ा साढ़े लोग उत्थे फस गए, उन्हां की वापस नहीं आवन देन लगे। उन्हां दी गड्डियां दी चाबियां उन्हां जब्त कीतियां ते बकायदा उन्हां कोल असला वगैरह है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। धरने में लंबे बालों वाले मुसल्ला मशकूक अफराद भी मौजूद थे। वापस जाने वालों को भी रोका जा रहा था। कलअदम कमेटी के रावला कोट धरने में शरीक नौजवान के इंकशाफात। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में आवेज़ां पोस्टर्स और बैनर्स ने कलअदम कमेटी की हकीकत को अयां कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ गयूर कश्मीरी अवाम ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। मीरपुर की शाहराहों पर कलअदम एक्शन कमेटी नामंजूर के पोस्टर्स, अवामी मज़ाहमत का खुला इजहार। अमन की तारीख रखने वाले आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार फैलाने वाले इंतशारी टोले के एजेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ से महरूम कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर की मामूली कमी। पेट्रोल के नए निर्ख ₹297.53 और डीजल की कीमत ₹309.50 मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 बढ़ा दी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की जंग से पहले की कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। रेट चल रहा था ना, उसी के रेट के ऊपर जो है पेट्रोल को मेंटेन रखा जाए। पेट्रोल 50 रुपए महंगा हुआ है और सस्ता ₹1.5 होता है, तो जंग का जमाना भी तो नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसके रेट को मजीद लेकर जाए जंग वाले माहौल से पहले। मुल्क में फी लीटर पेट्रोल पर शहरी ₹119 इजाफी देने पर मजबूर। पेट्रोल की फी लीटर लागत ₹178.77 बनती है, लेकिन कीमत ₹297.53 मुकर्रर है। डॉन न्यूज़ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्सेस और मार्जिन की तफसीलात सामने ले आया। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल ₹1.97 कम करके लेवी ₹6 से ज़ायद बढ़ा दी थी। LNG की कीमतों में 16.17% तक इजाफा। सुई सदरन के लिए कीमत $2.59 और सुई नादरन के लिए सिस्टम पर LNG $2.5 फी MMBTU महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बंदरगाहों को जदीद बनाने और बहरी सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ताउन पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर जुनेद अनवार की हुकाम से मुलाकात में मुख्तलिफ मंसूबों पर ख्वार। पंजाब हुकूमत का खस्ता हाल मकानों की मरम्मत और बहाली के लिए मुस्तहिक खानदानों को बिलासूद कर्जे देने का ऐलान। 5 से 10 लाख तक कर्जा लिया जा सकेगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत खस्ता हाल मकानात की मरम्मत भी मुमकिन बनाई जाएगी। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट पर पंजाब का किसी सूबे से कोई मवासना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बयान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉरपोरेट फार्मिंग में तेजी। गैर आबाद जमीनों को काबिल काश्त बनाने का अमल जारी। टेक्नो एग्री एंड फूड्स ने कुशाब और मियांवाली के करीब 950 एकड़ पर कॉरपोरेट फार्मिंग शुरू कर दी। पीओ बस हादसे की तहकीकात जारी। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा में दफातर सील। सिविल अस्पताल यूब में मुंतकिल। 33 में से 26 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। पेशावर का एक ही खानदान के 8 अफराद भी हादसे का शिकार। 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। जाए हादसा पर सैलावी रहने से हादसे की शिकार मुसाफिर मस का मलबा बहा दिया। इस्लामाबाद पुलिस में 1,500 से ज्यादा आसामियों पर भर्तियों के लिए सिर्फ 4 रोज रह गए। मोहसिन नकवी ने शहरियों से अप्लाई करने की अपील कर दी। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स और अकेडमीज को नोटिस जारी करने का आगाज। एक ही रोज में 744 मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में कराची की मकामी अदालत में 7 साल बाद फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। कत्ल के मुकदमे का मरकजी मुलजिम आतिफ जमान जेल में मौजूद।
शरीक मुलजिम आदिल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर फरार हो गया था। गुजरावाला में तोहम परस्ती के बाइस मां के हाथों बच्ची को जलाने का केस। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मेयो अस्पताल में मुतासरा बच्ची से अयादत, डॉक्टर से इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग ली। लाहौर में मुबैना तौर पर नौमौलूद को दफनाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची के इलाके गोलीमार के 9 साला बच्चे में HIV की तस्दीक। फ्रंटियर कॉलोनी में अब तक 108 बच्चे HIV से मुतासरा हैं। वले का अस्पताल के MS का 93 बच्चे मुतासर होने का इतराफ। सवात की कालाम झील में एक और गाड़ी टिकटॉक बनाते हुए फंस गई। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी झील के अंदर जा गिरी। गाड़ी में सवार तमाम 7 अफराद को बचा लिया गया। गाड़ी को झील से निकालने की कोशिशें। एबटाबाद की मालसा बैरन गली आबशार में नहाते हुए 14 साला लड़का डूबकर जान बहक। रेस्क्यू 1122 के शहरियों से आबशारों और गहरे पानी में एहतियात बरतने की अपील। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब रवादारी की अजीम मिसाल। खस्ता हालत के बाइस गिरने वाली सिख बरादरी के धर्मशाला की दीवार बाहमी ताउन से बनाने का ऐलान। कौमी पैगाम आमन कमेटी के तहत तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन का फारूकाबाद शेखुपुरा का दौरा। सिख बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गैर मुल्की दौरों में मिलने वाले एज़ाज़ात पर सवालात उठाए। मोदी के अवार्ड भारत की सिफारती कामयाबी के बजाय सियासी तशहीर ज्यादा हैं। सीशल्स में मोदी को दिए गए अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार होने के इम्कानात। द गार्डियन की रिपोर्ट, मोदी को कोई भी अवार्ड दे वो दौड़े चले जाएंगे। भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाला अवार्ड भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दे दिया। सस्ते AI मॉडल से छापे गए सर्टिफिकेट में वाज़े इमले की गलतियां हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हौसिया ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, खुश्की और समुंदर पर मौजूद अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे दी। सऊदी हुक्म ने वाज़े कर दिया कि किसी भी जारहाना कोशिश का जवाब फैसला कुन अंदाज और बेमिसाल ताकत के साथ दिया जाएगा। सहूनी फौज की गजा को नाकाबिले रिहाइश बनाने की मुनज़्ज़म साजिशें। इसराइली फौज के हाथों उसके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में घरों की तबाही का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज के मज़ालिम। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 1179 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। 90 फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में मौत का शिकार हो चुके। फ्रांस ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए। फ्रांसीसी माइन हंटर्स शराकतदारों के साथ मिलकर बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। सदर इमैनुअल मैक्रोन का एक्स पर पैगाम। फ्रांस के जनूबी इलाके बेलिये में लगी आग बेकाबू हो गई। सैकड़ों एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। यौम आज़ादी पर सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी की अमरीकी हमसब डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत। तहनीती ख़त में बावर कराया कि पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन के आज़म पर इस्तेवार हैं। 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग बंदी पर ट्रंप का किरदार लायक़ तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने करार दिया कि पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। अमरीका में 250वीं यौम आज़ादी के जश्न की रंगारंग तकरीबात। व्हाइट हाउस पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। आसमान पर 250 का हिंसा बन गया। व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल पर आतिशबाजी की वीडियो शेयर। जश्न की मुनासबत से 250 साल बाद खोला जाने वाला टाइम कैप्सूल दफन कर दिया गया।
जिसे साल 2276 में खोला जाएगा। 400 किलोग्राम वजनी टाइम कैप्सूल में आईफोन 17 प्रो मैक्स महफूज कर दिए गए। शदीद गर्मी से वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ जश्न की तकरीबात मुतासिर। वाशिंगटन का मारूफ न्यू नेशनल मॉल आवाम के लिए बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना कैबो वर्डे को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने मजीद 2 गोल स्कोर किए, जबकि केप वर्डे ने गोल स्कोर नहीं कर सकी। मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कोलंबिया ने घाना को काबू करके प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मिस्र में 92 साल बाद यादगार फतह पर पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया। मनचलों ने बाइक्स और गाड़ियों पर जश्न मनाया, आतिशबाजी की। रात भर पूरे मिस्र की सड़कें जश्न का मंजर पेश करती रहीं। शादी की तकरीब तो चलती रहेगी, पहले होगा मैच का जश्न। मिस्र में शादी के दौरान मेहमानों के लिए तारीखी मैच देखने का एहतमाम किया गया। मिस्र ने विनिंग पेनल्टी लगाई तो मेहमानों के साथ साथ दुल्हा दुल्हन ने भी खूब जश्न मनाया। मिस्री टीम का मैदान में सजदा शुक्र, ड्रेसिंग रूम में सूरह फातिहा की इज्तिमाई तिलावत। मिस्री कोच ने जीत गजा के फलस्तीनियों के नाम कर दी। स्टेडियम में भी फलस्तीनी परचम लहरा दिया। गजा में भी फलस्तीनियों का जश्न। 5 लाख आबादी वाले कैबो वर्डे के प्लेयर्स भी लायनल मेसी के फैंस। मैच के बाद लेजेंड फुटबॉलर के साथ सेल्फीज। अर्जेंटीना की जीत पर शहर शहर मेसी के फैंस का जश्न। कोलंबिया के अवाम खुशी से दीवाने हो गए।